Hello everyone, this is your English class and today we are going to discuss the chapter 5, The Adventures of an Understudy from class 8. This is from your English book Gulmohar Language for Life. So firstly we will discuss about the author of this chapter. Sir Anthony Hope Hawkins, better known as Anthony Hope. The other name for Anthony Hope Hawkins is Anthony Hope. He is better known as by the name of Anthony Hope. He was an English novelist. What is the means of English novelist? Means he is a British novelist and playwright. He was a prolific writer, especially of adventure novels, but he is remembered predominantly for only 2 books. He was very famous for his novel and playwright, but he is mainly famous for his 2 books. Which are 2 books? The Prisoners of Zenda and its sequel, Rupert of Henzo. Okay. And Sir Anthony Hope was born in 1863 in London. And okay, now we'll start our chapter 5. So firstly we will know about the title of this chapter, The Adventures of an Understudy. So what is the means of understudy? Understudy means you can say that double role. Look here, understudy, an actor who takes on a particular role in a play if the usual actor is absent. You can say that duplicate role, double role. Have you ever seen any double role movie? आपने बहुत सारी movies देखी होंगी जिसमें actor का double role रहता है और अगर मेन एक्टर उस मूवी से डिसअपेयर हो जाता है तो उसकी जगह पर उसका डुप्लीकेट या डबल रोल एक्टर उस रोल को प्ले करता है. ठीक है. आपने प्रेम रतन धन पायो मूवी देखा है एंड उस मूवी में डबल रोल रहते हैं. एक किंग रहता है एंड एक नॉर्मल बॉय रहता है. ओके. तो जब किंग को प्रॉब्लम होती है तो किंग का जो रोल प्ले करता है वो एक नॉर्मल बॉय अपने आप को किंग शो करके उसका रोल प्ले करता है. सो दैट इज अंडरस्टडी. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर? दिस इज टोटली द स्टोरी ऑफ प्रेम रतन धन पायो मूवी. ओके. सो हैव यू एवर सीन दैट मूवी? You have to must watch, then you will understand this chapter very well. So the story begins from here. Rassendal is traveling from England to Ruritania to see the coronation of King Rudolph. So what is the means of coronation? Look here. Ceremony at which someone is officially crowned king or queen. आपने कभी सेरेमनी देखी है जब कोई किसी पर्टिकुलर पोस्ट को संभालता है तो उसकी एक सेरेमनी की जाती है जिसे हम कॉरोनेशन बोलते हैं. इन हिंदी वी कैन से दैट राज तिलक. किंग्स को उनका थ्रोन मिलता था तो उसकी एक सेरेमनी की जाती है जिस दिन किंग को उनका थ्रोन मिलता है. तो सिटी को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जाता है. सभी लोग कॉरोनेशन देखने आते हैं जिस दिन किंग को उसके थ्रोन पे बैठना होता है जिससे कि वो पूरा अपना किंगडम संभाल सके. ओके. तो कॉरोनेशन होने वाला था किसका? किंग रुडोल्फ का. ओके. और रसेंडल इंग्लैंड से रूरिटेनिया जा रहे थे किंग रुडोल्फ का कॉरोनेशन यानी राज तिलक देखने के लिए. A chance meeting in the woods bring Rassendal and Rudolph face to face and they discover that they look exactly alike. Both met in woods. What's the means of woods? Means you can say that jungle. Okay. So Rassendal किंग रुडोल्फ का कोरोनेशन देखने जा रहे थे इंग्लैंड से रूरिटोनिया, बट वुड्स में बाई चांस both met with each other and both looked at
face to face them, and they discover what they found. They found that they look exactly alike. They are looking like a double role, duplicate of each other. और उनके हेयर भी इतने ज़्यादा वो सेम थे कि उनके जो हेयर थे वो उनका शेड भी बिल्कुल रेड था, जैसा कि रॉयल एल्फबर्ग फैमिली के मेंबर्स, यानी जिस फैमिली का किंग थे वो एल्फबर्ग फैमिली के किंग थे रूडोल्फ, उनकी जो फैमिली थी उनके सारे जो भी पर्सन्स होते थे उनके जो हेयर का शेड होता था वो ब्रिलियंट रेड होता था। और वैसा ही शेड किसका था? रेसेंटल का था। रेसेंटल ऑफ रूडोल्फ, दोनों का जो बिल्कुल सिमिलैरिटी थी वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट जैसी थी। इवन हेयर भी उनकी मैच हो रहे थे। एल्फबर्ग फैमिली के मेंबर्स की तरह उनके हेयर भी, रेसेंटल के हेयर भी रेड थे। The next day, Rudolph is found unconscious and unable to attain his coronation. Suddenly, something happened और King Rudolph का जो coronation होने जा रहा था वो about to cancel था, मीन्स कैंसिल होने वाला था, क्योंकि King Rudolph को something happened with him कि वो एकदम unconscious मीन्स बेहोश होने की एकदम सिचुएशन में थे और अनेबल टू अटेंड हिज कॉरोनेशन, और वो कॉरोनेशन को अटेंड नहीं कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन में उनका कॉरोनेशन कैसे होता? बट इट वाज अ वेरी नेसेसरी टू अटेंड द कॉरोनेशन। लेकिन उस टाइम पे किंग का जो कॉरोनेशन अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी था। वाई? बिकॉज बट द शो मस्ट गो ऑन, इट इज़ अ फ्रेज, ओके। बट द शो मस्ट गो ऑन मीन्स जो भी आपने प्लान किया है उसको कैरी करना। विच यू प्लान शेड्यूल समथिंग इज बीइंग टू कैरी, तो ये ज़रूरी था। शो मस्ट गो ऑन कि किंग की सेरेमनी यानी कॉरोनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अदरवाइज किंग का जो हाफ ब्रदर था, यू कैन से दैट स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, एंड एन एनिमी, यू कैन से दैट उनका स्टेप ब्रदर और एनिमी बोथ था। वो सौतेला भाई भी था और एक एनिमी भी था जो कि किंग रूडोल्फ को मार डालना चाहता था। ब्लैक माइकल, वो चाहता था कि वो उस कॉरोनेशन उसका हो, ना कि उसके बिग ब्रदर का, ओके। ही वांटेड टू बी द किंग ऑफ दैट किंगडम, so it was very necessary to attain the ceremony, the coronation of that time. So किंग वॉज अनकॉन्शियस, जो रूडोल्फ थे वो अनकॉन्शियस थे और वो अटेंड नहीं कर सकते थे। बट शो मस्ट गो ऑन, लेकिन वो कॉरोनेशन बहुत ही ज़रूरी था। और तभी रेसेंटल, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे थे, फॉर द सेक ऑफ रूस्टेनिया, रेसेंटल मस्ट प्रिटेंड मीन्स ड्रामा करना, टू बी रूडोल्फ फॉर द डे एंड टेक पार्ट इन द कॉरोनेशन। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि उनका जो डुप्लीकेट था रेसेंटल, उसको एज अ रूडोल्फ किंग बन करके कॉरोनेशन को अटेंड करना था। ओनली फॉर वन डे उससे किंग बनना था। और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी कि उनके जो ओरिजिनल किंग है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश हैं, और उनकी जगह पे कोई और एक्ट कर रहा है, उन्हीं के जैसा कोई एक पर्सन, डुप्लीकेट पर्सन है, वो सेरेमनी को अटेंड कर रहा है। ये बात किसी को भी नॉलेज में नहीं आनी चाहिए थी। ये पूरा जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, कौन क्रिएट करते हैं? किंग्स फ्रेंड्स कोलोनेल सेप्ट एंड द फ्रिट्ज वॉन टैरलेम promise to help, but will Rasental manage to deceive Black Michael and Princess Flavia, the woman who Rudolph is engaged to marry? Read on to find out. किंग के एक फ्रेंड और बहुत ही क्लोजेस्ट मिनिस्टर, यू कैन से, जो किंग के बहुत ही करीबी होते थे, क्लोज़र होते थे, किंग के फ्रेंड भी कह सकते हो और उनके क्लोज मिनिस्टर भी कह सकते हो, जो उनकी पूरी केयर टेकर और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते थे। उनको जब ये बात पता चली कि किंग अनकॉन्शियस है और उनका कोरोनेशन होना ज़रूरी है, तो उन्होंने रेसेंटल को पकड़ा और उसे सारी बातें उन्हें समझाई कि रेसेंटल, यू विल बी द किंग ऑफ दैट नेशन, दैट किंगडम, एंड यू विल बी टेक द प्लेस ऑफ रूडोल्फ। तुम ही उस राजा की जगह पे डुप्लीकेट बनोगे। जबकि जो रेसेंटल थे वो एक नॉर्मल पर्सन था और उसे नहीं पता था कि एक किंग कैसे बिहेव करते हैं, किंग जो होता है वो कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सभी के बीच में बिल्कुल सीरियस होकर चलते हैं। तो ऐसा नेचर उसका नहीं था रेसेंटल का। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू प्ले द रोल ऑफ रूडोल्फ द ग्रेट किंग।
जो किंग के फ्रेंड थे कॉलोनल सैप्ट और फ्रिट्ज, दोनों रेसेंडल को ले जाते हैं और उसे सारी चीज़ें सिखाते हैं कि तुम्हें जो प्ले करना है रोल उसमें एक्ट कैसा होगा, वो जो किंग थे वो कैसे एक्टिंग करते हैं, मीन्स उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या रेसेंडल मैनेज कर पाते हैं, डिसीव कर पाते हैं ब्लैक माइकल और प्रिंसेस फ्लेविया को। दो ही पर्सन ऐसे हैं जो कि किंग रुडोल्फ को बहुत ही बेटर जानते हैं। कौन कौन? एक ब्लैक माइकल, उनके स्टेप ब्रदर, एंड प्रिंसेस फ्लेविया हु इज़ शी इज़ फियांसे ऑफ रुडोल्फ, इंगेज टू मैरी, जिनसे कि किंग की मैरिज होने वाली है रुडोल्फ की। तो रेसेंडल ब्लैक माइकल और प्रिंसेस फ्लेविया को डिसीव कर पाते हैं, धोखा दे पाते हैं। यू विल रीड इन दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Okay, the game had begun. The cool morning air streaming in through the window of the train cleared my head, and I was able to take in all Sap said to me. This is the scene of a train. Okay, ट्रेन में सैप्ट और फ्रिट्ज रेसेंडल को लेकर आ रहे हैं और उन पूरे ट्रेन की जर्नी में उन्होंने रेसेंडल को हर एक बात बता दी, मीन्स अबाउट द रुडोल्फ कि कैसे उनका पूरा एक्ट आपको कैसे करना है, और उन्होंने पूरी बातें अपनी अडॉप्ट कर ली थी। ही वॉज वंडरफुल, ही बिगन एट वंस टू इंस्ट्रक्ट मी इन द हिस्ट्री ऑफ माई पास्ट लाइफ, of my family, of my tastes, of my pursuits, weaknesses, friends, companion, and servants. The story is being narrated by the रेसेंडल। रेसेंडल ये स्टोरी सुना रहे हैं कि जब मैं ट्रेन से आ रहा था तो मुझे फ्रिट्ज और सैप ने मेरे पास्ट के बारे में बताया। माई पास्ट से यहाँ पर रिलेटेड है किंग रुडोल्फ की लाइफ के बारे में, जिनका वो रोल प्ले करने जा रहे हैं। माई पास्ट लाइफ, ऑफ माई फैमिली, कैसी उनकी फैमिली है, उनके टेस्ट कैसे हैं, परस्यूट्स बिजनेस कैसा है, उनकी वीकनेसेस कैसी हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, कंपेनियन कैसे हैं, सर्वेंट्स के साथ कैसा कैसा बिहेव करना है, सब कुछ उनको ट्रेन में सारी हिस्ट्री बता दी गई। ही टोल्ड मी द एटिकेट ऑफ द रूरिटानियन कोड। एटिकेट मीन्स मैनर्स, फॉर्मल रूल्स, polite behavior at the court. Court means not for these courts. Courts means जो किंग का जो पैलेस होता था जिसमें मीटिंग के लिए सबसे मिलते थे, वो कोर्ट होता था, और कोर्ट में उन्हें कैसा एटिकेट रखना है ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था रूरिटोनियन कोर्ट के। और प्रॉमिस टू बी कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो टू पॉइंट, मीन्स कॉन्स्टेंटली टू माई एल्बो पॉइंट आउट एवरीबडी whom I ought to know. और उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो कोई भी काम अपने मन से नहीं करेंगे, वो कैसा काम करेंगे, वो अंडर रह करके, किसके अंडर में, फ्रिट्ज और सैप्ट जो उनके क्लोजेस्ट मिनिस्टर थे रुडोल्फ के, उनके अंडर में रह करके उन्हें पूरा काम करना था। जो जो वो बोलेंगे वो उनसे बिना पूछे उन्हें कुछ भी करने का राइट नहीं था। एट 9:30 जब ये ट्रेन से पहुँचते हैं तो कितना टाइम हो चुका था, 9:30। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ द टॉवर्स ऑफ ए ग्रेट सिटी। ये एक ग्रेट सिटी में लाए गए थे, और रूरिटानियन की जो ग्रेट सिटी थी वो कैसी थी, वेरी टॉवर्स मीन्स बिल्डिंग्स, यू कैन से सिटी थी, बहुत ही ग्रेट सिटी थी। ग्रेट मीन्स बिग सिटी कह सकते हो। योर कैपिटल माई लीज। माई लीज मीन्स रिस्पेक्टफुल मैनर ऑफ एड्रेसिंग द लॉर्ड दैट ही served. Grinned old Sapt with a wave of his hand. यहाँ पर रेसेंडल तो एक नॉर्मल बॉय थे और उन्हें ट्रेन में सब कुछ समझा कर लाया गया था। सैप्ट और फ्रिट्ज ने सब कुछ बता दिया था, बट अब ट्रेन उनके डेस्टिनेशन पे आकर के रुक गई थी, और अब उन्हें कैसा बिहेव करना था, रेसेंडल को एज अ किंग बिहेव करना था, और ओल्ड सैप्ट और फ्रिट्ज को एज अ उनके क्लोजर मिनिस्टर के जैसे ही एज अ गार्ड, यू कैन से, या असिस्टेंट, ऐसे कह के आप उनको वैसा ही बिहेव करना था। तो उन्होंने माई लीज मीन्स एक बहुत ही मैनरफुल वर्ड है माई लीज, जैसे कि आप बोलते हैं माई लॉर्ड, योर ऑनर, लाइक दैट। योर कैपिटल, दिस इज़ योर कैपिटल, माई लीज। और उन्होंने थोड़ा सा बैंड होते हुए उनको वेव ऑफ हिज हैंड मीन्स हैंड से रिएक्शन किया, वेलकम किया उनका कि आपकी कैपिटल आ गई। लीनिंग फॉरवर्ड,
ही लेड हिज फिंगर ऑन माई पल्स। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने, ये तो ड्रामा चल रहा था, तो वो जो ओल्ड सैप थे उनको पता था कि ये थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे रेसेंटल क्योंकि डुप्लीकेट है, तो उन्होंने उनकी फिंगर ऑन माई पल्स, पल्स मीन्स जो आपके हैंड में पल्सेस होती है ना, वेन्स होती हैं जो बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगती है बीट, हार्ट बीट फास्ट होने के साथ साथ, तो उन्होंने उनको टच किया पल्स को और बोले अ लिटिल टू क्विक, ये बहुत ही ज़्यादा आप नर्वस हैं, थोड़ा सा आप नॉर्मल बिहेव करिए, सेड ही in his grumbling tone. Said he, you can see here, said he, it is a correct, okay, not wrong. And his grumbling tone, थोड़ा सा grumbling tone में बोला a little too quick, ये बहुत ही ज़्यादा quick है, इससे थोड़ा सा comfortable zone में करिए आप, वरना सबको समझ में आ जाएगा कि आप ओरिजिनल किंग नहीं हैं, यू आर प्रिटेंडिंग फॉर द किंग। आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, आई एक्सक्लेम्ड। रेसेंटल बोलते हैं आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मुझे इतने बड़े किंग का एक ड्रामा करने को मिला है, डुप्लीकेट रोल करने को मिला है, तो मैं तो थोड़ा सा नर्वस हूँगा ना, मैं कोई स्टोन का तो नहीं बना हूँ, थोड़ा सा मुझे डर लगेगा। सैप्ट बोलते हैं यू विल डू, सेड ही विद अ नोट। और ये लोग थोड़ा सा इशारों में बात कर रहे थे जिससे कि बाहर के लोगों को पता ना चले, तो उन्होंने हेड को नॉट करते हुए मीन्स हिलाते हुए बोला यू विल डू। देन ही पॉज्ड एंड लुकिंग एट अस सेड क्वाइटली गॉड सेंड वी मे बी अलाइव टुनाइट। गॉड सेंड मीन्स अ प्रेयर टू गॉड फॉर विशिंग समथिंग डिजायर्ड। और ही पास एंड लुकिंग एट अस, और हमारी तरफ देखते हुए उन्होंने थोड़ा धीरे से बोला कि गॉड से प्रे किया कि वी मे बी अलाइव टुनाइट, आज रात को हम जिंदा बच जाएं क्योंकि कल कॉरोनेशन होना था। कॉरोनेशन किसका होगा? रेसेंटल का, जो कि रुडोल्फ का एक डुप्लीकेट था। एमिन सेड फ्रिट्ज, एमिन इज़ अ वर्ड यूज्ड एट द एंड ऑफ अ प्रेयर मीनिंग मे इट बी सो। The train stopped. Fritz and Sapt leaped out and held the door for me. जैसा कि किंग के लिए किया जाता है, किंग से पहले उनके जो क्लोजर असिस्टेंट होते हैं वो उतरते हैं, सेक्रेटरी यू कैन से, और वो डोर ओपन करते हैं लाइक दैट। फ्रिट्स और सैप ट्रेन को स्टॉप होते ही वो डोर से लीप्ड करते हैं, मीन्स कूद जाते हैं, जंप करते हैं। इट चोक डाउन अ लम्प दैट रोज इन माई थ्रोट। जब आप बहुत डरे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपके माउथ में जो वाटर होता है उसको आप बार बार क्या करते हैं, चोक डाउन मीन्स आप उसको अंदर कर लेते हैं, आपके माउथ में बार बार वाटर आता है और आप उसको थ्रोट में अपने अंदर करते जाते हैं फॉर फियर, डर की वजह से। ओके, देन आई सेटल माई हेलमेट, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, एज अ किंग उन्हें अब बिहेव करना था। ट्रेन स्टॉप हो चुकी थी, उनका डेस्टिनेशन आ चुका था, और आई सेटल माई हेलमेट। सेटल माई हेलमेट मीन्स हिज क्रोन, जो हेड पे पहनते हैं किंग्स, और फर्मली ऑन माई हेड पर क्लियरली उसको रखा, एंड ब्रीथेड इज शॉर्ट प्रेयर टू गॉड, और शॉर्ट प्रेयर की गॉड्स को कि गॉड सब कुछ अच्छा करना। The last thing I did was to feel if my revolver was handy and my sword loose in its scabbard. मीन्स मैंने लास्ट थिंग क्या चेक किया, मैंने देखा मेरे रिवॉल्वर मेरे पास है और मेरी स्वॉर्ड स्कैबर्ड में है। स्कैबर्ड मीन्स मेटल और लेदर कवर फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे स्वॉर्ड रखते हैं उसको रखने के लिए कवर होता है मेटल का, इसके स्कैबर्ड बोलते हैं। और स्कैबर्ड में चेक किया कि उनकी स्वॉर्ड उसमें है या नहीं। देन आई स्टेप्ड onto the platform of the station of Streltsy. जब मैंने सब कुछ चेकिंग करने के बाद अपना हेलमेट मीन्स क्राउन सही किया और अपनी स्वॉर्ड को सही किया, और उसके बाद मैं स्टेप्ड आउट onto the platform of station of Streltsy. Streltsy स्टेशन के पास आकर के वो उतर जाते हैं। The bells throughout the city. So इतने बड़े किंग जब ट्रेन से उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म कैसा था, बहुत ही ज़्यादा किंग के वेलकम में डेकोरेट किया गया था, और वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री ऑफ बैंड्स थे, मींस जो उस टाइम पे बैंड्स चलते थे, म्यूज़िक जो प्ले करते थे फॉर द वेलकमिंग ऑफ द किंग, और मैन चीयरिंग स्ट्रक माई ईयर, और वहाँ पे बहुत सारे मेंस थे जो कि चीयर कर रहे थे, बहुत सारे फ्लावर्स लेकर के, बहुत सारे गार्लैंड्स लेकर के उनका वेलकम होता है। किंग रुडोल्फ द फिफ्थ वॉज इन हिज गुड सिटी ऑफ स्ट्रेल्सी। किंग रुडोल्फ थे जो कि 5th नंबर के किंग होने वाले थे, 5th नंबर के किंग थे किंग रुडोल्फ, उनका वेलकम करने के लिए। एंड दे शाउटेड आउटसाइड गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, इट इज़ अ स्लोगन, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना किंग
उनकी जय हो और वो मे ही लिव लॉन्ग, बहुत दिनों तक जिंदा रहें, लाइक दैट गॉड सेव द किंग, हमारे किंग हमेशा लॉन्ग लाइफ जिए, उनकी गॉड रक्षा करें या उन्हें सेव करें गॉड, लाइक दैट। बेल्स थ्रू आउट द सिटी ब्रोक आउट इनटू द जॉयफुल पील। बेल्स थ्रू आउट मीन्स बहुत ही तेज़ी से शोर हो रहा था वहाँ पे उनके वेलकम में, बहुत सारी चीज़ें। All Sap's mouth wrinkled into a smile. God save them both. उन्होंने स्माइल की और क्या बोला, उन्होंने बहुत स्लोली बोला, ही विस्पर्ड, बिल्कुल स्लोली अपने माउथ में ही बोला, गॉड सेव बोथ। बोथ हु वॉज बोथ, हु वो बोथ, बोथ मीन्स एक रोडोल्फ थे जो ओरिजिनल किंग थे, और एक कौन थे, सेकेंड वॉज रसेंजल। ओके, तो उन्होंने बोला कि दोनों को गॉड सेव करें, क्योंकि दोनों का ही जिंदा रहना जरूरी था जब तक कि कॉरोनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एक किंग तो उनके अनकॉन्शियस बीमार पड़े हुए थे और दूसरे किंग को उन्हें सेव करना था, डुप्लीकेट किंग को। एंड आई फेल्ट हिज हैंड प्रेस माई आर्म, करेज लैड, उन्होंने बोला करेज लैड, लैड मीन्स बॉय, तो उन्होंने उस किंग को बोला, रेसेंजल को बोला कि करेज मीन्स थोड़ा सा हिम्मत रखो, बी करेजियस, एंड फेल्ट हिज हैंड प्रेस माई आर्म, और उन्होंने हल्का सा उनके हैंड को टच किया। अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स स्टूड अवेटिंग मी, एट देयर हेड्स वॉज अ टॉल ओल्ड मैन कवर्ड विद मेडल्स एंड इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, मार्शल स्ट्रैकन्स। मिलिट्री ऑफिसर्स का ग्रुप आया वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए, और उनके साथ एक हेड थे जो कि बहुत ही टाल और ओल्ड मैन थे, और उनके पास बहुत ही सारे मेडल्स लगे हुए थे। ही वॉज अपीयर्स लाइक मार्शल स्ट्रिकन्स, वो उनके लीडर थे। विस्पर्ड सैप्ट, उन्होंने सैप्ट से धीरे से बोला, एंड आई न्यू दैट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रूरिटानियंस आर्मी। उन्होंने कुछ विस्परिंग की सैप्ट से, और मुझे पता था कि वो कोई वेटरन है और द रूरिटानियन आर्मी, कि मुझे पता था कि वो कोई स्पेशल पर्सन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पर्सन है, समवन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द आर्मी एंड इज़ इन अ वेरी हाई एंड रिस्पेक्टेड पोजिशन। मीन्स उनको देख करके मैं समझ गया था कि ये कोई बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है आर्मी के, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। The marshal saluted me in a few loyal words. I accepted his greeting very swellly. Means a marshal saluted me in a few loyal words. जो मार्शल आए थे ये एक नॉर्मल मैन थे, रेसेंडियल, उन्हें तो ये सब ग्रीटिंग्स लेने की हैबिट नहीं थी, और ना उन्हें पता था कि ग्रीटिंग का जो रिप्लाई है वो कैसे दे रहा था, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की उसकी। ओके, वेरी swellly means इन अ वे दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट बट नॉट सिंसियर। वो बहुत ही अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे उन्होंने उनको ग्रीटिंग का रिप्लाई किया। एंड रिसीव द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, नो वन रिबल्ड द लीस्ट सस्पिशन। कोई भी अभी तक, बहुत सारे वहाँ पे गेस्ट प्रेजेंट थे, बट कोई भी अभी तक उन पर सस्पेक्ट नहीं कर पाया था कि ये ओरिजिनल किंग नहीं है, उनका डुप्लीकेट है। सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग, इसलिए जब इतना कॉन्फिडेंट हो गए, अब उनकी नर्व्स कैसी हो गई थी, स्लो हो गई थी, उनकी हार्ट बीट जो फास्ट थी अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी। एंड द ट्रबल बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग मीन्स बिकमिंग स्लोवर, और जिनकी हार्ट बीट थी वो कैसी हो गई थी, सबसाइडिंग मीन्स बिकमिंग स्लोवर। प्रेजेंटली आई माउंटेड माई हॉर्स एंड started to ride through the streets with the marshal on my right and Sept on my left. After रीचिंग इन द स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन्हें एक हॉर्स दिया गया, जिस हॉर्स पर वो बैठ करके, हॉर्स वॉज वेरी डेकोरेटेड, और हॉर्स पर बैठ करके उनके लेफ्ट एंड राइट पे कौन थे, सैप्ट थे और प्रिंस थे, मार्शल्स थे, चारों तरफ उनके हॉर्सेस चल रहे थे। आपको पता है ना कि जब कोई किंग चलता है तो उसके आसपास उनके गार्ड रहते हैं और उनके क्लोजर्स रहते हैं, जिससे उनकी डिफेंस हो सके, और उसी हॉर्स पे बैठ करके उन्हें सारी स्ट्रीट से होकर के पैलेस जाना था। द सीन वॉज ब्रिलियंट एज वी रोड स्लोली टू वेयर द रॉयल पैलेस स्टूड। एवरी हाउस वॉज हंग विथ रेड एंड डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स। The street were lined with raised seats on each side. I passed along, bowing this way and that under a shower of cheers, blessings and waving handkerchiefs. आपको पता है कि जो रेसेंडल थे वो किंग रुडोल्फ का कॉरोनेशन राज तिलक देखने आए थे,
और जबकि उन्हें खुद ही पकड़ लिया गया और उन्हें एज ए किंग डुप्लीकेट बना दिया गया। उन्हें ऐसा फॉर्चुनेटली उन्हें ऐसा मिल गया चांस कि वो खुद ही किंग बन करके वो सारी चीज़ें वो फील कर रहे थे कि किंग को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना वेलकमिंग मिलता है। तो वो हॉर्स पे बैठ करके हर एक स्ट्रीट से जा रहे थे। वहाँ के जितने भी हाउसेस थे कैसे थे, बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड थे, सब में रेड फ्लैग लगा हुआ था फॉर द वेलकमिंग ऑफ किंग। एंड जो स्ट्रीट्स के जो भी वो साइड्स पे स्ट्रीट्स में सारी वुमेन्स ऊपर थी, हैंडकरचीफ शो कर रही थी और वेलकमिंग बोल रही थी। एंड balconies वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस्ड लेडीज़। वहाँ पे लेडीज़ कैसी थी, बहुत ही ब्राइटली ड्रेसेस मीन्स न्यू ड्रेसेस पहने हुई थी। हु क्लैप देयर हैंड्स एंड कट साइड्स, अ टोरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी। और ऊपर से वो मीन्स ब्लेसिंग्स दे रही थी और फ्लावर्स फेंक रही थी। उनमें से एक फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर या बर्ड कह सकते हैं आप, वो उनके हॉर्स के मैन पर गिरा। मैन मीन्स हॉर्स के जो हेयर्स होते हैं नेक पे, उन्हें बोलते हैं मैन। तो वो एक उसमें से जो एक फ्लावर था वो आकर के उनके हॉर्स के मेन पर गिरा। आई टूक इट एंड स्ट्रक इट इन माई कोट। मैंने उस फ्लावर को उठा लिया और उसे अपने कोट में स्टक कर लिया, कोट की पॉकेट में स्टक कर लिया। जबकि ये किसी किंग के लिए तो बहुत नॉर्मल बात होती है ना, उनके ऊपर फ्लावर्स गिरते ही रहते हैं। लेकिन वो एक नॉर्मल मैन था तो उसको वो फ्लावर बहुत अच्छा लगा और उसने उस फ्लावर को उठा करके अपनी पॉकेट में लगा लिया। द मार्शल स्माइल्ड ग्रीमली। जो मार्शल उनके साथ में चल रहे थे वो थोड़ा सा सस्पेंस में थोड़ा सा स्माइल किया उन्होंने कि ये किंग को क्या हो गया, कैसे बिहेव कर रहे हैं। द रेड रोज फॉर द एल्फ बग्स मार्शल सेड आई गेली एंड ही नोडेड। उन्होंने बोला कि एल्फ बग्स के मार्शल के लिए ये रेड रोज़ था, इसीलिए मैंने इसे अपनी पॉकेट में स्टक कर लिया। आई सेड गेली, गेली मीन्स चीयरफुली। मैंने बहुत ही स्माइल करते हुए बोला एंड नोडेड, और अपना सर हिला दिया। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, गुड बाय।